নমস্কাৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই স্বাগতম জনাইছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মণিপুৰৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত আৰু ইয়াত সদায় সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আসাম ৰাইফলছে। আজি সেইসকল জোৱানৰ বিষয়ে দেখুৱাম। যেতিয়াই হিংসাত্মক পৰিস্থিতি, যেতিয়াই অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি, তেতিয়াই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত তেওঁলোক। উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী দমন, জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তেওঁলোকৰ। যেতিয়াই মণিপুৰত হিংসাজৰ্জৰ পৰিস্থিতি, যেতিয়াই জিৰিবামত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়াই সন্মুখৰ পৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ। (1835 চন) ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশত জন্ম হৈছিল সৈনিকৰ এটা দল। নাম আছিল কাছাৰ লেভি। ব্ৰিটিছৰ আমোলত গঠন হোৱা এই সৈনিকৰ দলটোৰ নাম প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত হৈছিল আসাম ৰাইফলছ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বাৰ্মাত এই সৈনিকৰ দলটোৱে পালন কৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। স্বাধীনতাৰ পাছত উত্তৰ পূবত বৃদ্ধি পোৱা সন্ত্ৰাসবাদ দমনৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছিল আসাম ৰাইফলছ। (1962 চনত ভাৰত চীন যুদ্ধত সমুখ সমৰত নামিছিল আসাম ৰাইফলছ। 1990 দশকত জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়াৱহ উত্থানৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছিল বাহিনীটো। দেশৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় অদমনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আসাম ৰাইফলছে। দুৰ্গম স্থানত আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলক দিয়া হয় অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ। রাইফল ভন সামনে টার্গেট সিগন্যাল ডাউন গ্রুপিং ফায়ার। 11 মাহৰ প্ৰশিক্ষণৰ মাজতেই এইসকল বীৰ যোদ্ধাক দিয়া হয় অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ। কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে প্ৰশিক্ষণ। গ্ৰুপিং ফায়ার। Check report. असम राइफल जिसको हम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 1835 में ये
पैरामिलिट्री फोर्स बनी थी उसको कचार लेवी के नाम से जानते थे। आज जो इसका नाम असम राइफल है वो 1917 में आके इसका नाम असम राइफल पड़ा। असम राइफल इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस and 191 years completed, and Assam Rifle has seen all kind of disturbance, that is from World War till 1962 war and present situations. So Assam Rifle अगर मैं बोलूँगा हमारा मेन रोल जो है काउंटर इंसर्जेंसी है। उसके अलावा हम इंडो म्यांमार बॉर्डर जो कि 1640 किलोमीटर का एरिया है उसको हम गार्ड करते हैं। Other than that, we do other activities, other security forces, law and order maintenance, and we also do perception management activities, that is medical camps for the civilians and civil aid. কি দিন কি ৰাতি ঘন জংঘলত চলে আসাম ৰাইফলছৰ অভিযান। উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযানৰ সময়ত হস্তম হৈ অভিযানত নামে আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকল। फायरिंग का हम लोग का एक एम है, एक गोली एक दुश्मन, तो वो मेंटेन करते हुए ये जो आर्म्स का ट्रेनिंग होता है, वेपन्स का ट्रेनिंग, ये कैसे होता है, कितना दिन लगता है, ये थोड़ा बताइए। ओके, तो एक असम राइफल का जो सोल्जर होता है उसका पहले बेसिक ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर अपना स्मॉल आर्म्स के बारे में, जो बेसिक मिलिट्री वेपन्स हैं, असम राइफल्स के वेपन्स हैं, उनके बारे में सीखते हैं। उसके बाद हम लोग एट कंपनी लेवल जब हम लोग ऑपरेशनली कहीं पे डिप्लॉयड होते हैं या बट कहीं पे सेंट्रली किसी जगह पे होते हैं, तो हम लोग उसके साथ साथ में अपना ट्रेनिंग कैरी करने के लिए प्रैक्टिस फायरिंग कराते रहते हैं। दिस अपना जो राइफल है दैट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, सो वी हैव टू वी हैव टू ट्रेन इन दैट। तो वो हम लोग कराते रहते हैं सो दैट हमारे जो जवान्स हैं और सभी JCOs ऑफिसर्स फिज़िकली फिट है ना एंड मेंटली रोबस्ट जो बोलते हैं एंड वैसे रहें। फायरिंग का हम लोग का एक एम है, एक गोली एक दुश्मन, तो वो मेंटेन करते हुए हम लोग अपना ट्रेनिंग करते हैं। আজি সেইসকল জোৱানৰ সৈতে আছোঁ যিসকল জোৱানে দেশৰ জটিল মুহূৰ্তত অতুলনীয় ভূমিকা পালন কৰে। So असम राइफल इफ़ यू सी नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जब भी किसी फोर्स का नाम लिया जाता है तो वो है असम राइफल। एंड असम राइफल, द बॉयज़, द ट्रुप्स have seen this area and they are crewed up in this area north east, इसीलिए इसको सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। असम राइफल इफ़ आई से it's a force which has taken care of complete नॉर्थ ईस्ट। यहाँ के लोग असम राइफल को पसंद करते हैं। बहुत बार सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बट पीपल लव असम राइफल एंड वी ऑल्सो लव देम एंड दैट्स द रीज़न वी आर हियर। हमारा जो ट्रुप्स है असम राइफल का, दे आर फिट, दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग and they have taken care of this place and they are doing tremendously, exceptionally well in the field of
keeping the northeast safe. যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ জোৱানসকল সাজু হৈ থাকিব লাগে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে দৈনিক স্বাস্থ্যৰ অনুশীলন কৰে। আসাম ৰাইফলছৰ এই যিসকল জোৱান আছে তেওঁলোকে কিন্তু মাহত এবাৰকৈ 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগে, তাৰ লগতে বহু কচৰত কৰিব লাগে। পাঁচ কিলোমিটাৰ দৌৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ওলমিব লাগে ৰছী, তেওঁলোকে স্বাস্থ্য প্ৰমাণ দিব লাগে যে তেওঁলোক সুস্থ আছে। মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে কেনেদৰে কচৰত কৰে, তেওঁলোকে নিজকে সুস্থ বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে কি পৰীক্ষা দিব লাগে। ये जो बीपीटी टेस्ट है ये क्या है और ये महीना में एक बार होता है, ये थोड़ा बताइए क्या है। सर जो BPTE है तो वो है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सर ये क्वार्टरली मंथली होता है सर। इसमें जो एक जवान को जो उसकी फ़िज़िकली एफिशिएंसी है उसको चेक किया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है, जवान फिजिकली और मेंटली फिट किया जाता है सर। इसमें क्या होता है 5 किलोमीटर का रन होता है सर, और 5 किलोमीटर के रन के बाद इसका 60 मीटर एक स्प्रिंट होता है, उसके बाद वर्टिकल रोप होता है, हॉरिजॉन्टल रोप होता है, और 9 फीट का एक डिच होता है सर, उसको क्रॉस करना पड़ता है सर। तो एक जवान को इसको पास करना ज़रूरी होता है फिजिकल के लिए। और सर इसमें एज वाइज टाइम लिया जाता है सर। इसमें हम अंडर 30, अंडर 40 और अंडर 45 तक के टेस्ट होते हैं। ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बताइए, किस चीज़ में ये काम आता है। सर ये इसका नाम है स्लिदरिंग, और ये दूर दुर्गम और सुदूर इलाकों में सीआई ऑपरेशन के दौरान जहां गाड़ियां समय से ना पहुंच पाएं या गाड़ियों का पहुंचना असंभव हो और पैदल जाने में टाइम लगे, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जवानों को कम से कम समय में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जवानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्लिदरिंग द्वारा वहां उतारा जाता है, ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অন্যতম অংশীদাৰ হৈছে কুকুৰ। যিকোনো অভিযানৰ বাবে কুকুৰক দিয়া হয় প্ৰশিক্ষণ। আসাম ৰাইফলছৰ
ডগ মাষ্টাৰে পৰিচালনা কৰে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰক। ये डॉग का ट्रेनिंग कितने दिन से होता है, कैसे होता है और किस सिचुएशन में ये जाना पड़ता है ये डॉग को लेकर? डॉग का ट्रेनिंग अनुशासन देने के लिए होता है। ये इसका जो हम लोग जैसे सिखाते हैं डॉग को, उसके बाद 3 प्रकार का असम राइफल में ट्रेनिंग दिया जाता है डॉग को, ईडी, एनडी और ट्रैकर। तो जैसे हम आरओपी वगैरह जाते हैं तो कोई टेररिस्ट वगैरह एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, आईडी वगैरह लगाया जाता है, तो उसमें हमको ईडी डॉग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी मदद से हम उसको कम आईडी को ढूंढने में फुल हेल्प होती है डॉग के साथ। और दूसरा जो ट्रैकर डॉग है, इसको हम जैसे कोई ऑपरेशन में वगैरह में जा रहे हैं, कोई टेररिस्ट भाग गया तो उसका पीछा करने के लिए ट्रैकर डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। और एनडी डॉग है हमारे पास, जो इसका एमबीसीबी वगैरह लगाया, कोई गाड़ी में कोई ड्रग्स वगैरह जा रहा है या कोई बाहर ऐसे कोई लेके ड्रग्स वगैरह लेके जा रहा है तो उसमें एनडी डॉग को लगाया जाता है, वो हमारी मदद करता है। रोड के ऊपर जो आप लोगों का ड्यूटी है, इसको आरओपी बोलता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और किस समय कैसे ये आपको ड्यूटी करना पड़ता है? जो आरओपी है ये हम डेली रूटीन वर्क से जो हमने मॉर्निंग में हर दिन रोड ओपन करने के लिए किया जाता है ये। और इसमें जो कलवर्ट वगैरह या ब्रिज वगैरह, उसमें कोई आईडी वगैरह या कुछ सामान या कोई ऐसा अनसेसरी सामान हो तो उसको हम मेटल डायरेक्टर और डॉग की मदद से निकाल सकते हैं। आरओपी का मतलब है रोड ओपनिंग पार्टी। काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में जब कोई वीआईपी विजिट होता है या कोई मूवमेंट होता है, तब हम लोग आरओपी की कार्रवाई करते हैं। आरओपी करने से पहले हम लोग ज़्यादातर उस रोड का पहले रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद आरओपी लगाते हैं। ज़्यादातर अगर हमें संदिग्ध चीज़ें मिलती है, जैसे कि आईडी हो गया या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं, तब कलवड़ वाले इलाके में या फिर कोई रोड का बैंड के इलाके में, तब हम मेटल डिटेक्टर और डॉग का इस्तेमाल करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। असम राइफल्स का निकनेम है फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल। तो यहाँ पे हम लोग एक कंपनी है एंड लोकली हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे परसेप्शन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जिसमें मेडिकल कैंप्स, एनआईटी टूर्स, हम लोग यहाँ के बच्चों को अलग अलग जगहों पे लेकर जाते हैं ऑल थ्रू इंडिया। देन मेडिकल कैंप्स ऐसे ही सेड, उसके बाद लोगों से घुलना मिलना, उनके परिवारों के साथ रहना, उनके साथ वी आर लाइक अ फैमिली विच इज़ टुगेदर हेयर। साथ ही साथ जहाँ पे भी हमारी कंपनीज असम राइफल डिप्लॉयड होती है, उधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, नारकोटिक्स का प्रॉब्लम हो गया या कोई और ऐसी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, तो उसको हम लोग वी हैव गॉट आवर मीन्स, उससे हम लोग उसको काउंटर करते हैं। एंड काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं विच हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो उससे मेंटेन रखते हैं पीस एंड वी डू इट वेरी इफेक्टिवली। द बॉयज़ ऑफ द असम राइफल्स, दे आर वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल और हार्डन सोल्जर्स हैं। গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষক লৈ
মণিপুৰ যেতিয়া অশান্ত হৈ পৰিছিল, জিৰবাম যেতিয়া অশান্ত হৈ পৰিছিল, তেতিয়া অসম ৰাইফলছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল পৰিস্থিতি। স্থানীয় লোকে নিৰাপত্তা লাভ কৰিছিল আসাম ৰাইফলছৰ পৰা। আৰু স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকে কেনেদৰে আসাম ৰাইফলছৰ সৈতে সহযোগিতা কৰে বা তেওঁলোকক কেনেদৰে সহায় কৰি আহিছে আসাম ৰাইফলছে, সেই কথা মই জানিব বিচাৰিম স্থানীয় লোকৰ পৰা। আৰু ইয়াত উপস্থিত আছে বহুকেইগৰাকী স্থানীয় লোক। आप बताइए असम राइफल्स से कैसे आपको मदद मिलता है और कैसे सिक्योरिटी मिलता है? पहले तो वो जो वायलेंस हुआ था उस समय तो बहुत सिचुएशन ख़राब हुआ था, उस समय असम राइफल्स ने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया था, तो थोड़ा बताइए। नहीं, असम राइफल्स ऑलरेडी एयर फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जब भी यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होके गया है उसमें काफ़ी अच्छा मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। हम लोग यहाँ शांति से रहे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं था, इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओनली बिकॉज ऑफ द असम राइफल्स हु आर स्टेइंग एट वखाल, और बाकी दे आर वेरी फ्रेंडली एंड हमारे सोशल वेलफेयर में चाहे और स्पोर्ट्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स ऑल्सो असम राइफल्स जो वखाल में जो कैंप है दे आर कोऑपरेटिंग विद अस अ लॉट। सो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि दे रिकॉर्ड द बेस्ट वन। আপোনালোকে নাৱেৰেও আপোনালোকে ডিউটি কৰে, নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক নিয়োগ হৈ থাকে, কেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগে? আমি নাৱেৰেও কৰিব লগা হয়। নদীৰ দুয়োটা অঞ্চল আমি এডিবি কৰিব লাগে, এৰিয়া ডমিনেশ্যন পেট্ৰল, আৰু এৰিয়াটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ নিজৰ এয়াৰ নাও আছে। তাৰপাছতে যদি আমাৰ দৰকাৰ হয় আমি চিভিল নাও ইয়াত এভেইলেবল হয়, আমি তাৰ পৰা লৈ পেলাই অঞ্চলটো আমি কণ্ট্ৰলত ৰাখোঁ। আমি শান্তি কায়েম ৰখাত আমি দায়িত্ব পালন কৰোঁ। असम राइफल ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन दूधी है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है JNK का, आई थिंक सबसे बड़ा ऑपरेशन है। उसके अलावा और भी ऑपरेशन किए हैं, और आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में असम राइफल की वी हैव फोर्सेस ऑफ असम राइफल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। सो असम राइफल किसी भी समय किसी भी प्रकार की सिचुएशन के लिए तैयार है। एंड असम राइफल इज़ नॉट ओनली रेडी फॉर एनी कंटिजेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, बट इफ गिवन ऑर्डर्स वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। एक टेस्ला नाम का आप लोगों का डॉग था, बहुत सारे ऑपरेशन किया था, बहुत सक्सेस हुआ था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सी ऑपरेशंस बहुत सारे करते हैं हम लोग, और ये एक ऑपरेशन का नाम है। इससे ज़्यादा ऑपरेशंस के बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं है। ऑपरेशंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी, आई थिंक इट शुड नॉट बी टोल्ड। इट्स एन ऑपरेशन इज अ पार्ट वेयर डॉग हैज टेकन पार्ट। बैटरी सब 64%, स्टोरेज 316, ओके। चैनल 4 UAID QSU 62914, GPS 2727,
Altitude 50. Run check. Answer check. নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত অত্যাধুনিক ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰে আছাম ৰাইফলছে। ড্ৰোনৰ সহায়ত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নিৰীক্ষণ কৰে আছাম ৰাইফলছে। Yeah. Okay. Proceed, take up. Run check. Very good, right. तो हम लोग के पास ये जो न्यू जनरेशन इक्विपमेंट आ रखे हैं, तो उसके अंदर ड्रोन्स सर्विलेंस करने के यूज़ में आता है। किसी भी एरिया को ठीक कारगर तरीके से और अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, उस पर डोमिनेशन बना के रखना एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड एक रियल टाइम में इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो ये कुछ ऐसे कुछ चंद एक न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। इसके अंदर जैसे नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ हो गया, एंड इसके सिवाय और भी कई फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। तो फॉर असम राइफल्स ये काफ़ी हेल्पफुल इक्विपमेंट है, एंड इसकी ट्रेनिंग के लिए सभी सोल्जर्स जवान्स इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर हाईली ट्रेन्ड एंड प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग सच इक्विपमेंट्स। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সমান্তৰালকৈ খেলা ধূলাও কৰে আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে। তেওঁলোকৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন খেলৰ প্ৰতিযোগিতা। আছাম ৰাইফলছৰ ইণ্ডাৰ ছেকশ্যন বেটেলিয়নৰ মাজত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় ভলীবল প্ৰতিযোগিতা। পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকি প্ৰতিগৰাকী হৈ পৰে আছাম ৰাইফলছ পৰিয়ালৰ সদস্য। মাহত এবাৰ সকলোৱে লগ হৈ অনুষ্ঠিত কৰে বৰাখানা। এই অনুষ্ঠানত কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ পৰা জোৱানলৈকে সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ লগতে গীত নৃত্যও কৰে। আজি হৈছে বৰাখানা, আৰু ইয়াত মাহত এবাৰকৈ সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খায়, সকলোৱে হাঁহি ফূৰ্তি কৰে, গান গায়, কোনোৱে কবিতা পাঠ কৰে, সকলোৱে একত্ৰিত হৈ ফূৰ্তি কৰে, আনন্দৰে এসাঁজ খায়। अतिथि महोदय कर्नल प्रशांत सिंह चुंडावत, शौर्य चक्र, समादेशक महोदय, मैं राइफलमैन राजेश कुमार गुजर आप सभी का 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सभी के मनोरंजन के लिए हमने एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये प्रोग्राम काफ़ी पसंद आएगा। बड़ा खाना में हम सब जवान अफसर जेसीओ साहब मिलके अच्छा से खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं सबके प्लेटों में सारा कुछ खाना रखा हुआ है।
ये हमारा एक रूटीन नहीं है, बट हम लोग अपना तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर फैमिली से दूर हैं और लोग को ये बड़ा खाना से एक दूसरे के अंदर और जुड़ाव होता है। हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रेंथ बना पाते हैं, जुड़ते हैं। और ये एक बड़ा खाना नहीं है, हमारे किसी भी ऑपरेशनल किसी भी काम में लड़ने की एक क्षमता है। इससे हमारी क्षमता में मजबूती आती है, हम एक दूसरे का साथ अंदर से जुड़ते हैं, अपने दिल की बातों को गहराइयों से रख पाते हैं सबके सामने। इसलिए इस बड़े खाने का आयोजन करते हैं। तो बड़ा खाना में हम वो सारी चीज़ें, दिन की टेंशन हो, आपको कोई और घर की कोई तनाव सता रहा हो, इन सब चीज़ों को परे रख के हम एक जगह बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों को परे रख के। और ख़ासकर जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जिसमें आजकल लोग सोशल मीडिया में घुसे जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ हम अपने फ़ोन से दूर रहते हैं, बाकी चीज़ों से दूर रहते हैं, एक साथ आके खुल के अपनी बातें रखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं बेसिकली। एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने जवान आपके साथ आते हैं, बात करते हैं, अपनी कोई पर्सनल दिक्कत आपको बताते हैं और सब चीज़ें पीछे रख के आपके साथ दो ठुमके लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस इसी का उद्देश्य, ये बड़े खाने का यही उद्देश्य है बेसिकली, तो वो हम इसमें हासिल करते हैं। हाँ, बॉनफायर भी रखते हैं, जैसे अभी थोड़ा सर्दी हो रहा है यहाँ पे जिरीबाम में, तो हमने बॉनफायर का ऐसे आयोजन किया है। आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती शामों में, मचलती शामों में, अकेली रातों में, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ अगला नंबर उनका जिनका नाम दंड पाल है, नाम भी ऐसा जिसके नाम में ही दंड हो, किसकी मजा लो दारू पी के बंद हो, दारू पीनी है तो फिर इशू वाले 3 दिन, चिकू साहब ढक्कन तोड़ो बोतलों को गिन के, गिनना ही पड़ेगा इस साथ जो मिलाना है। और अगली लाइन में पैसे साहब आपको मिलाना है, कोई साहब ऐसे जैसे जैसा उनका नाम है, राम जी के साथ चलते लक्ष्मण समान है। अब उनकी बारी है जो सबसे ज्यादा खास तकती है, क्या है लीडर, सारे चक्र जिनके पास लीडर भी है, ऐसे वो जो आगे आगे चलते हैं, शेर का हम शेर जैसे बनते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। 38 की वो जान 38
41 की वो काम 41 को दिलाई एक नई पहचान, छोड़ देंगे नाम में हम दुनिया को पीछे, हम जितना जमीन से ऊपर उतना ही नीचे। हमें पता है कि क्या क्या मजबूरी है, लेकिन वॉलीबॉल खेलना वो भी तो जरूरी है। दुनिया में काम करेंगे, 38 के हीरो से काम करेंगे। 38 की बात है तो सारे तबाही है, ऑफिसर जेसीओ या के सिपाही है। होपिंग करेंगे पूरा रखते ख्याल, जनवरी का महीना हुआ हम खेले वॉलीबॉल। साइटेशन की बात है तो साइटेशन भी दो और कुछ भी मजा आया है तो सारे मिलके ताली ठोक दो। खड़ा रह जाता हूँ, मैं तो देश का पहरेदार बनकर खड़ा रह जाता हूँ। शहीद हो जाऊं तो रोना मत, शहीद हो जाऊं तो रोना मत, मुस्कुराना, क्योंकि मैं तिरंगे में लिपट कर घर आऊंगा, क्योंकि मैं तिरंगे में लिपट कर घर आऊंगा। मेरी कब्र पर फूल मत रखना, मेरी कब्र पर फूल मत रखना, बस सलाम करना, क्योंकि मैं आज भी इस मिट्टी में जगा रहूंगा, क्योंकि मैं आज भी इस मिट्टी में जगा रहूंगा। फौजी हूं मैं, सांस भारत के लिए लेता हूं, सांस भारत के लिए लेता हूं, आखिरी सांस भी भारत को दूंगा, आखिरी सांस भी भारत को दूंगा। माँ कहती है बेटा संभल कर जाना, माँ कहती है बेटा संभल कर जाना, पर मैं मुस्कुरा कर बोलता हूँ माँ चिंता मत करना, माँ चिंता मत करना, क्योंकि तेरी दुआओं से बड़ी कोई ढाल नहीं है, क्योंकि तेरी दुआओं से कोई ढाल नहीं है। पत्नी कहती है जल्दी वापस आना, पत्नी कहती है जल्दी वापस आना, पर मेरा फर्ज कहता है पहले मेरा वतन फिर मेरी जान, पहले मेरा वतन फिर मेरी जान। बच्चा कहता है पापा मत जाओ, बच्चा कहता है पापा मत जाओ, और दिल हल्का सा टूट जाता है, वही मेरा दिल हल्का सा टूट जाता है। लेकिन जब तिरंगा सामने लहराता है, जब
तिरंगा सामने लहराता है तो दिल से एक ही आवाज गूंजती है, तो दिल से एक ही आवाज गूंजती है, भारत मेरा गर्व है, भारत मेरा महान है, भारत मेरा गर्व है, भारत मेरा महान है। एक फौजी हर बार यही कहता है, मेरा फर्ज मुझे सीमा पर बुला जाता है। ये मेरी ध्रुव स्वयं रचित कविता है। आप लोगों को पसंद आया होगा तो जोरदार तालियां। তিনিশ 65 দিনেই দেশৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত এইসকল যোদ্ধা কঠোৰ অনুশীলন কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে নিৰাপত্তা দিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকক জটিল মুহূৰ্তত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়ে এইসকল বীৰ সৈনিকে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাই একতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ মহান আদৰ্শৰে সমৃদ্ধ কৰিছে ভাৰতক দেশৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত সদা সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰি অহা আছাম ৰাইফলছে সুৰক্ষা কৱচ হিচাপে আমাক দিছে নিৰাপত্তা শত্ৰুপক্ষৰ পৰা ৰক্ষা কৰি অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী হৈ প্ৰতিদিনেই পালন কৰি আহিছে নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ বেহুত আশ্ৰয় লৈ নিশ্চিন্ত মনে আমি প্ৰতিজনে পাৰ কৰিছো দিনবোৰ নিশা তেওঁলোকে উজাগৰে থাকি আমাক দিছে শান্তিৰ টোপনি গণৰাজ্য দিৱসত এইসকল বীৰ জোৱানলৈ আমাৰ চেলুট আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ